Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says ABC is an equilateral triangle. Charges plus Q are placed at each corner. The electric intensity at O will be. Option 1 given है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. Option B given है 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. Option C 0. Option D 1 by 4 pi epsilon naught 3 Q by R square. So about electric field intensity, we must understand as a key concept K electric field intensity, that is E bar, is given by the formula F bar upon Q naught bar, that is force experience or force on the test charge upon the unit test charge. ठीक है. So let's consider a case जहाँ पे हम consider कर रहे हैं we have a positive charge and at some distance r, let's say we are interested in calculating the electric field और यहाँ पे we will consider a test charge. So in this situation by the formula हम क्या लिख सकते हैं, magnitude का formula we are calculating, so E can be written as F by Q naught. अब F will be nothing but it is a electrostatic force which is given by the Coulomb's law, so उसको हम लिखेंगे K Q naught upon R square. So in that situation ये result हमारे पास आएगा K Q by R square. So this is the magnitude of electric field intensity that we need to remember. If we talk about the positive charge, so we know that electric field lines are originating in nature from the positive charge, and when we take or consider a negative charge, so इसमें जो electric field lines होती हैं वो होती हैं terminating in nature. So these are the few important points that we need to remember regarding electric field intensity. अब also we need to understand about the superposition principle. So superposition principle says the net electric field या फिर net electric force के लिए भी apply कर सकते हैं हम ये. The net electric field at any point is nothing but it is the vector sum of the electric field due to individual charges. ठीक है ना. सो जितने भी चार्जेस होंगे उनकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी विल जस्ट हैव टू ऐड इट वेक्टोरियली. सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट वी आल्सो नीड टू कीप इन माइंड. अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, यानी कि ओ के ऊपर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बनाए, सो ड्यू टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी दिस वे, ड्यू टू सी इट विल बी दिस वे, ड्यू टू ए इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू we can say it as to be B. This is electric field intensity due to C and we have taken it in the vector form. अब यहाँ पे we can see clearly कि since it has been given an equilateral triangle, यहाँ पे equilateral है, ठीक है. So in that situation हम अगर यहाँ पे देखें point O है ये हमारा, so this angle will be what 120 degree. यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लें नीचे की तरफ, so this angle since we can say these are the medians drawn, so we can say this angle will be 30 and this angle will be 60, so ये भी 60 हो जाएगा. so जो ऊपर वाला एंगल है that is we have shown it over here, so that will be 120 degree, right. अब यहाँ से we can say कि first of all we will calculate the magnitude of EC. अगर हम मान ले जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये तो R गिवन है, राइट. सो we can say EC की जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं that can be done as KQ by R square only from the figure, क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन है वो सॉरी इट इज़ EA, राइट. सो ये EA हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली ड्यू टू A इट विल बी KQ by R square. अब वी नो कि जो B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो C की वजह से होगी वो भी KQ by R square ही होगी. अब जस्ट वी कैन सी के C और B जो है वो दोनों ही वेक्टर्स हैं एंड दे आर एट सम एंगल 120 डिग्री. सो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज ECB कैन बी गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ विच इज EC का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EC/EB इंटू कॉस थीटा, राइट. सो दिस इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ इज. सो पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली वी यूज फॉर वेक्टर एडिशन. उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज इट. सो यहाँ पे EC की जो वैल्यू होगी दैट विल बी KQ बाय EC और EB दोनों की वैल्यू क्या होगी KQ बाय R स्क्वायर का द होल स्क्वायर कर देंगे हम एंड इनटू 2. सिंस वी नो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में. इफ टू साइड्स आर P, एक वेक्टर P है एक वेक्टर Q है और दोनों ही कुछ एंगल थीटा पे हैं, सो रिजल्टेंट बिटवीन द टू विल बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. तो ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्योंकि सेम है, सो वी आर सब्सटीट्यूटिंग ट्वाइस ऑफ इट. अब cos 120 होता है -1/2, सो 1 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा KQ अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर,
राइट। सो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन वी कैन से ECB जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। और वो जो मिलेगा हमें उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, इट इज कमिंग आउट टू बी KQ अपॉन R²। सो हम देख सकते हैं कि सिंस EA और ECB दोनों ही अलोंग द सेम लाइन है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो वी कैन से देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जीरो विल बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दिस केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द